Gujarat Vidhan Sabha, Surat Diamond Boost, Sabarmati Riverfront, Kashi Vishwanath, leading hospitals in Gujarat, many landmarks in GIFT City. Can you believe a son of a farmer from a small village in Gujarat is the one who's shaped the reality of all these iconic projects? Today we had the privilege of meeting a person who in the span of 40 years of his career has said only one thing in the face of challenges. Hi Jashay. A soldier-like personality, tall and inspiring as a mountain, full of life lessons. He was making Gujarat's first precast plant when all of us were sitting at home in Corona worrying about our future. Prahlad Bhai Patel, the founder of PSP Projects. Welcome to Real Estate Real Insights by Swati Procon. Thank you, sir. Yeah. Thank you. थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम. आपको पता है हम हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है आपसे सुनने के लिए और आपसे लाइफ लेसन सीखने के लिए. Thank you. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन. जितना हमें थोड़ा बहुत आपके बारे में पता है, आप सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हैं, ये थोड़ा सा हमने रिसर्च की है. एंड और उसके बाद आपकी जर्नी रही वन ऑफ दी बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनीज आपने एस्टैब्लिश की. इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए हमें. आप सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से शुरू किया, मैं थोड़ा जन्म से शुरू किया. हाँ ज़रूर. बेटर है. हाँ क्योंकि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में तो मैं शायद 81 में गया. बट आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज नियर महसाणा. पाटन के बाजू में मेरा गाँव है. माई फादर वॉज अ फार्मर. When I was 9 years old, my father put me to a school which was a residential school. जो सैनिक स्कूल बालाचड़ी जानी जाती है. उस टाइम पे उधर भेजने के दो रीज़न थे. We were having a very small piece of land and we were 3 brothers. My father was knowing that the distribution of this land between these 3 people is not going to work for their life. Yes. So he made us to learn that you should get educated. So my elder brother was studying in village and then he went to school in Chanasma and then he became an engineer. But since I was the youngest, he wanted me to go out of village and stay at some residential school. So I studied my 5th to 12th in Sainik School. Now Sainik School is a school when you are working living in a residential school, you are out of with the family. We were allowed to go to family only on vacation 6 months one time. Okay. So it was a very hard time at the age of 9th or 10th, living father mother and staying in a school where we are not knowing anyone. Yes. तो वो जर्नी मेरी बहुत मेहनत की थी. साथ साथ हम लोग ने इतना सारा सीखा कि कभी सैनिक स्कूल था तो डिसिप्लिन, सुबह में उठ के तो पीटी में जाना, फिर परेड में जाना, 9 बजे ब्रेकफास्ट करने का, फिर 10 से 1 कॉलेज स्कूल जाने का, फिर 1 से 3 आराम करने का, फिर 4 बजे फिर पीटी में जाना, 6 o'clock पीटी गेम्स खेलने के बाद 7 बजे जाके अपने को नहा धो के 7 बजे स्टडी रूम में बैठने का. 7 to 8 अगेन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद टाई एंड शर्ट इनटू स्टडी रूम. वाओ. एंड 8 o'clock यू गो फॉर डिनर. तो वो जो मेरी लाइफ की जर्नी थी 5 to 12, उसके अंदर हमने काफ़ी वैल्यूज़ ऑफ लाइफ एंड वैल्यूज़ जो अपन फादर मदर के साथ बैठते हैं तो क्या सीखते हैं कि थोड़ी ऑनेस्टी, थोड़ी एथिक, बट डिसिप्लिन एंड टाइम आई लर्न फ्रॉम माई स्कूल. उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली. मैं सेंट्रल बोर्ड में पढ़ा था तो उस टाइम के ज़माने में 5 ही कॉलेज थी. तो आई कुड नॉट गेट एडमिशन इन अहमदाबाद, आई कुड नॉट गेट एडमिशन इन आनंद, आई कुड नॉट गेट बड़ोड़ा. सो आई हैव टू गो टू बाय कंपल्शन आई हैव टू गो टू मोरबी. अच्छा. सो दैट वाज द रीज़न आई स्टडीड इन एली कॉलेज मोरबी. पास्ड इन 85. हियर ऑल्सो देयर इज अ गुड एग्जाम्पल. I appeared for on the last paper on 15th of December 1985. 16th I went to meet my father mother. 17th I was on site. मेरा रिजल्ट नहीं आया था. एक ही दिन छुट्टी लिया था घर पे. Because when I was studying in the last semester, my uncle was here in Ahmedabad and there was one company in Ahmedabad. They were knowing each other. तो उस टाइम के ज़माने में private developers, private contractors were not keeping engineers. वो पानिया भतीजा फैमिली रिलेशन के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन चलता था. सब लोग सीखते थे. ओके. बट कीपिंग ए ग्रेजुएट इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कंस्ट्रक्शन कंपनी वो ट्रेंड नहीं था.
इंजीनियर बनना मतलब सरकार में जाना। 85 तक 87 तक सरकार एब्जॉर्ब कर रही थी, बट मेरे दिमाग में, बिकॉज आई स्टडी इन सैनिक स्कूल, तो वो जो करप्शन वाला दिमाग नहीं बैठता। तो मैं पहले से क्लियर था कि मैं सरकारी नौकरी नहीं। अच्छा। सो ऐसे जैसे 15 को एग्जाम दिया, 16 को घर पे गया, 17 को इधर आया, तो यहाँ के जो भी बॉस थे, इट वॉज अ टिपिकल ओनर कि बॉस, पर उस टाइम पे इंटरव्यू किया, नौकरी लगना है, आ गए हो, कहाँ जाने का, बुद्ध अंकलेश्वर चले जाओ, बस 5 मिनट्स इंटरव्यू एंड देन आई वाज स्टेट चांदोड़ ऐसे। तो आपको एंट्री मिल गई मतलब? हाँ, एंट्री मिल गई। तो मैं सीधा 17 तारीख को रात को 12 बजे साइट पे पहुँच गया। दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्ट। अभी मैं जहाँ नौकरी करने गया था, तो मैं इंजीनियर कम था, बट खेडू का लड़का ज़्यादा था, एक सनी स्कूल का लड़का ज़्यादा था। तो इट वॉज नॉट अबाउट कि मैं BC ले तो इट्स अ वाइट कॉलर जॉब। नो, आई स्टार्टेड विद अ ब्लू कॉलर जॉब। लेबर नहीं है तो लेबर का काम करने का, मिक्सर मशीन नहीं चला कोई सर तो मिक्सर मशीन चला लेता, पानी का पंप चलाना, पानी का पंप शिफ्ट करना, काफ़ी मेहनत वाला काम करते। और आपने पढ़ाई कौन सी की सर? आई स्टडीड इंजीनियर BC, सो बैचलर इन इंजीनियरिंग सिविल। तो वो जो मेहनत का काम और उसके साथ साथ ये मेरा जर्नी शुरू होना, मेरे बॉस देख रहे थे। एंड आई वाज टेक्निकली ऑल्सो साउंड, क्योंकि मेरे को वो टेक्निकल काम देते जाते थे, मैं उसको सॉल्व करके रखता था। तो 6-8 महीने में उनको लगा कि ये लड़का बहुत काम का है, तो उन्होंने बोला तू अहमदाबाद आ गया, कंपनी ने। हाँ। तो मैं अहमदाबाद एक साइड पे आ गया। फिर अहमदाबाद आने के बाद मेरे को उनको लगा कि ये चल लड़का अच्छा है, तो उन्होंने बड़ी साइड पे भेजा। तो फिर मेरे को गणदेवी भेजा गया, तो गणदेवी दरवाजे शुगर मिल, तो वो प्रोजेक्ट मैंने ख़त्म किया। सो 85 to 90 वो 5 साल में इधर उधर साइड बार घूमते रहा। फिर 91 में आई वाज शिफ्टेड टू अहमदाबाद, सेम कंपनी में। सेम कंपनी। 91 में मैंने मेरे बॉस को बोला, बॉस मेरे को नौकरी नहीं करना। तो बोलता है क्या करेगा? ये फादर तो खेडू थे, तो कैपिटल तो थी नहीं मेरे पास, कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर का काम कर लूँगा। आई कम फ्रॉम द सेम विलेज फ्रॉम वेयर श्री करशन भाई पटेल, KK पटेल साहब है, मैं दोनों एक गाँव से आ रहे। तो मेरे को मालूम था उनके पास जाऊंगा तो कुछ ना कुछ, उनकी फैक्ट्रियाँ बन रही थी, कुछ ना कुछ तो काम देंगे। But my boss was knowing that what is the inside about myself. तो बोला नहीं, तू नौकरी नहीं करेगी, तेरे को नौकरी नहीं करनी है तो मैं तेरे को सेल्स पार्टनरशिप देता हूँ। अच्छा, धंधा ही करना है ना, उधर भी जाके पैसा ही कमाना है, तो मेरे साथ जुड़ गए। सो 92 में मैं उनके साथ एज ए सेल्स पार्टनर जुड़ गया। 98 में उन्होंने वही कंपनी को एक नई कंपनी बनाई, जहाँ मेरे को 25% स्टेक दिया विदाउट एनी कैपिटल। और ये सेम कंपनी जहाँ पे आपने कहाँ से ब्लू कॉलर जॉब से शुरू किया? हाँ। और 98 की जो प्राइवेट जो कंपनी बनी थी उसमें 25% था। 2000 के साल में आई बिकेम 40% स्टेक होल्डिंग इन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एंड व्हेन आई लेफ्ट इन 2005 आई वाज अबाउट 40% स्टेक होल्डिंग इन द कंपनी। 40 साल की जर्नी में 20 साल मैंने उस कंपनी में निकाले। 20 साल की जर्नी के बाद आप बॉस बदलना चाहोगी? नहीं, तब तो फिर बच्चे भी हो गए थे, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ भी थी, टेंशन भी था, छोड़ूंगा तो क्या करूंगा। बट मेरा जो गुडविल था ना, आई वॉज हैविंग वेरी गुडविल इन दिस 20 years। जिस आर्किटेक्ट का काम किया, जिस कंसल्टेंट का काम किया, जो क्लाइंट का काम किया, एवरीबडी वॉज नोइंग मी लाइक कि भी साइट पे तो ये बंदा है। हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, हाउ यू मैनेज द साइट, हाउ यू डिलीवर द साइट, हाउ यू आर कमिटेड टू द साइट। ये चीज़ है ना, वो ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पटेल सर, साइट के लिए मतलब आप बेसिकली कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, ये आपका काम था, राइट? हमारा काम प्योर कंस्ट्रक्शन है। इनका साकिब भाई का काम है प्योर डेवलपर। ही इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग, आई एम वर्किंग फॉर ए ओनर। सो डेवलपर मेरे को काम देता है या तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे को काम देता है। सो वी वर्क विद द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा एक फिक्स रेट होता है ना, रेट के हिसाब से काम करने का, बचा तो नफ़ा, नहीं बचा तो नुकसान। सो इट ऑल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आ जाती है। तो 21-20 साल की जर्नी के बाद छोड़ने का एक रीज़न था कि वी वर नॉट एबल टू मेक पेमेंट्स टू द सप्लायर। और मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ही फ्रंट फेस हूँ और मैं लेबर को या सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो एथिकली इट इज़ रॉन्ग। माई बॉस वॉज मैनेजिंग द फाइनेंस, सो आई कुड नॉट टेल हिम एज ए पार्टनर, क्योंकि वो बॉस था और मैं पार्टनर बना। तो मेरा एक रिस्पेक्ट लेवल भी था।
And suddenly I thought to start this company in 2006. वाओ, और इस कंपनी का नाम आप ही के नाम पे है, राइट? Yeah, मेरा नाम PS पटेल विच इज़ PS पटेल। पर हम डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहेंगे आपके पापा को भी। उन्होंने क्या विजन रखा उस टाइम पे कि बात आपको है। उस टाइम पे सैनिक स्कूल भेजा, है ना? सही बात है। या एंड इन स्पाइट ऑफ हिम बीइंग may not be very educated, yeah, just a farmer, but he had a yeah. vision. Yeah. अभी आपको करीब 40 साल हो गए इंडस्ट्री में। What still keeps you motivated? See, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड बाय माई सेल्फ। मेरे को काम से डर नहीं लगता, प्रॉब्लम से मेरे को डर नहीं लगता, और मैं फोकस बहुत हूँ। कुछ भी चीज़ है तो मैं उसमें डीप में बहुत जाता हूँ। ऐसा नहीं कि ठीक ठीक है तू कर लेना, तो मैं उसको अगर पूछूंगा तू कैसे करेगा। मैं हमेशा ये चीज़ कंपनी में काफ़ी लोगों को बोलता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट गिव अ वर्क टू अ पर्सन, आस्क 3 क्वेश्चन, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। व्हेन, व्हाई एंड हाउ। तो पहला तो प्रश्न आता है कि व्हाई, ये मैं जो तेरे को बोल रहा हूँ क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ। उसका जो बेसिक मालूम नहीं होगा ना, तो उसको हाउ नहीं मालूम पड़ेगा, कैसे करेगा। यूजुअली कोई भी इंडस्ट्री के अंदर व्हेन बॉस इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू समवन, वो जी साहब वाला फॉर्मूला बहुत है अपने देश में। हाँ। जी करके निकल जाने का। आइदर हैव यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, हैव यू अंडरस्टूड द टाइमलाइन, एंड हैव यू अंडरस्टूड हाउ यू विल बी डूइंग। ये तीनों छोड़ के वो निकल गया। So people don't question their bosses? Yeah, that's wrong. Yeah. Actually, once till you do not understand the issue, why I'm giving this question, so there has to be a purpose for that question. तो पर्पस मालूम होगा ना, तो उसको सॉल्यूशन हाउ मिल जाएगा। और ये हाउ का टाइम मालूम होगा ना, तो वैन मेरे को बोल के जाएगा कब दूंगा। ये तीनों चीज बहुत रिलेटेड है, बट हमेशा अपने लाइफ में हम लोग क्या बोलते हैं कि सामने वाला समझ गया। ये मेरा कैपेबिलिटी होना चाहिए कि सामने वाला नहीं समझा। तो ये बॉस की कैपेबिलिटी, वो मेरी कमी है। अगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सामने वाला मेरा क्वेश्चन बराबर समझा कि नहीं समझा और उसको जाने दिया, दैट इज माय वीकनेस। एंड यूजुअली बॉसेस हैव दैट टेंडेंसी कि ज़्यादा खिचड़ पिचड़ मत कर, होना है तो होना है, बट दैट इज रॉन्ग। टिल हिज माइंड इज प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू, हाउ ही विल डू एंड व्हेन ही विल डू, उसके कैबिन के बाहर भेजना मतलब ये हुआ कि यू आर गोइंग टू रिपीट दिस वर्क अगेन आफ्टर 6 days। आपने छोटे से शुरू किया, छोटे रीजन्स में आपने कंस्ट्रक्शन शुरू किए, और फिर नाउ यू आर रिकग्नाइज्ड नेशनली। वीड लव टू नो कि आपने कैसे एक्सपैंड किया, आपके क्या लेसन्स रहे, और यही लेसन्स अगर आप यंगर जनरेशन को कुछ एडवाइस कर सकते हैं कि किस तरह से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू या लाइफ लेसन्स, क्या बताना चाहेंगे? मैं जैसे गुजरात में पहले शुरू किया, पहले मेरा एक फंडा ऐसा था कि आई विल नॉट वर्क बियॉन्ड 50 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। जब भी मेरे को कोई प्रोजेक्ट आता था, मैं पूछता था कितना दूर है। देयर एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग दैट माय पीपल शुड कम टू होम इन द इवनिंग एंड दे शुड स्टे विद द फैमिली। वो मेरा भी कल्चर था कि शाम को तो घर पे आना पहुँचने चाहिए। और बिकॉज एज आई सेड, गुडविल अच्छा था, काम बहुत मिल रहे थे, सो मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं। कैपेबिलिटी बढ़ाते जा रहा था, बट काम भी उतने बढ़ते जा रहे। बट एक पीरियड ऐसा आ गया कि फिर सबको ऐसा लगने लगा कि PS 50 किलोमीटर के बाहर मना कर देता। तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बहुत आती थी, बट वी वर नॉट एबल टू कोप अप विद अपॉर्चुनिटी। उसमें डर था कि वेदर विल बी एबल टू मैनेज आउटसाइड टू डिस्टेंस, क्योंकि इधर मैं जाके देख पाता। तो प्रोफेशनलिज्म का वो जो गैप होता है ना, आ जाता है। यू डोंट ट्रस्ट पीपल, यू पर्सनली इज गोइंग, you are personally going and instructing and getting the things done. Abhi kya ho, if you want to grow, now you have to make the process. You have to understand people. You have to make your own SOPs, how we will, this whole process should be audited also. तो फिर जैसे जैसे ये चैलेंजेस आते गए, तो मैं अपने आप को एक दूसरे मोड पे लेते गए। बिकॉज मेरी लाइफ गई है ज़्यादातर कॉर्पोरेट से। मैंने निरमा से शुरू करके निरमा, बाग बकरी, अंबुजा, कैडिला, इंटास, क्लैरिस, नेस्ले, कोका कोला, सारी कॉर्पोरेट कंपनियों से काम किया। मतलब कैसे? आई वाज डूइंग प्रोजेक्ट्स फॉर देम।
तो अगर कैडिला को Oh. अपनी फैक्ट्री बनानी है कि कैडिला ने अपनी जायडस हॉस्पिटल जब बनाई तो So you constructed all these hospitals, all hospitals of Ahmedabad, you name it, and I will say that Oh that is done by me. wow. So मेरी कल्चर में क्या था कि ऑलवेज इंटरेक्ट विद प्रोफेशनल पीपल। तो हम लोग हमेशा कीप योर सेल्फ आइज एंड ईयर्स ओपन। तो अब मैं जैसे अभी बोल रहा था उनको कि मोटिवेशन इज योर ओन, आपसे कहीं से सामने से मिलता है। अगर आँख खुली एंड कान खुला है तो मोटिवेशन मिलता है। So then when you talk to meet good people, when you meet owners like पंकज भाई और owners like करसन भाई, उनकी भी कुछ कैपेबिलिटीज होगी तब जाके उधर पहुंचे ना। मैं हमेशा करसन में मेरे गांव के तो मैं उनको मेंटर मानता था क्योंकि वो भी गांव खेड़ूत के लड़के हैं, तो कुछ तो उन्होंने किया होगा ना। then when you focus on people's journey, then you are also get inspired, and that inspiration should never end. आज भी इंस्पिरेशन मेरे में है, किसी की चीज को सीखना तो मैं उस पार हो जाता हूँ। बहुत अच्छी चीज। Let us do. So पटेल सर, आपके बहुत कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, काफ़ी लोग ये काम करते होंगे। आप में ऐसी क्या खास बात आपको लगती है जिस वजह से यू आर एबल टू एस्टैब्लिश दिस काइंड ऑफ स्केल इन योर बिजनेस? मेरे हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग विच आई हैव मेड पॉसिबल इज एथिक्स। मेरी लाइफ के जितने एथिक्स थे ना, मैंने वो सारे कंपनी में डाल दिए। यूजुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज दी वर्स्ट एक्सेप्टेड इंडस्ट्री। ठेकेदार को कभी कोई समय हमेशा चोरी मानते हैं। जनरली इफ यू से द कॉन्ट्रैक्टर बड़ा की होगा, साले ने बहुत चोरी किया। दैट इम्प्रेशन वॉज बाइटिंग मी लाइक एनीथिंग। यार ये गलत चीज़ है। हम भी खानदानी आदमी, इतना मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद पैसा कमाते हैं। वाई शुड बी ट्रीटेड लाइक ऑलवेज ए थिंग? क्योंकि कुछ भी मैं किसी को पूछने जाता हूँ तो इसमें तेरा कुछ झोल होगा, तो झोल की वजह से तुम मांग रहा है कि चेंज मांग रहा है। सो हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल पे लाना, कि रिस्पेक्ट लेवल पे लाना, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है एंड वो रिस्पेक्ट मेरे को मिला। क्या क्या चेंजेस किए आपने? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कमिटमेंट, जैसे उनके साथ अब कोई प्रोजेक्ट लेके बैठता हूँ तो आई एम ऑलवेज कमिटेड ऑन टाइम। आई एम ऑलवेज कमिटेड ऑन क्वालिटी। क्वालिटी कमिटमेंट एंड टाइम कमिटमेंट इज द मोस्ट ऑफ द टाइम ओनर्स रिक्वायरमेंट। इंडस्ट्री के लिए क्या होता है कि वो लोग 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 100 करोड़ ही कंस्ट्रक्शन होता है, बाकी लैंड, मशीनरी एंड एवरीथिंग। So if that project is completed on time and their machinery is installed on time and if their production is getting on time, they are earning a lot of money out of this business. अगर ये project time पे नहीं, 6 महीना और डिले हो गया तो प्रोडक्शन लॉस और इंटरेस्ट लॉस। सो मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टाइम कमिटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच मैंने बहुत लाइफ में स्ट्रिक्टली पकड़ के रखा। कभी कभी क्लाइंट का ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ जाता है कि बस मुश्किल है बट करोगे, तो आई ऑलवेज से गुजराती में थी जैसे। सो दैट इज व्हाट पीपल सी इन मी। तो वो जो मेरा कमिटमेंट लेवल टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट था, मेरा डिलीवरी, मेरे एग्जाम्पल्स थे कि कितने प्रोजेक्ट मैंने किए, कितने टाइम में किए। तो एक मार्केट में आपका एक इम्प्रेशन बनते जाता है एंड वो इम्प्रेशन में मैं एक क्लाइंट को कमिटेड नहीं था। इट इज़ वेदर स्मॉल बंगलो और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि कोई बोल रहा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट। माई लाइफ जर्नी ऑलवेज से कि ईच एंड एवरी क्लाइंट इज अ गॉड, भगवान होता है। उसके लिए तो तू अकेला कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए तो उसका घर बन रहा है, बट फॉर यू इट इज अ बिजनेस, फॉर हिम इट इज अ हाउस। सो मेरा पर्पज ये होता है कि आई शुड बी एबल टू डिलीवर हिम टू द बेस्ट एक्सटेंट इन टाइम। So your business, your job involves dealing with human labor. What challenges have you seen in that area? See, this is the worst respected community, I would say. मैं जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आया तब हमारे वहाँ एक स्टाइल होती थी, लेबर गोधरा से ज़्यादा आते थे। तो अच्छा। तो हम लोग बोल देते थे कि ये बल्ली पड़ा, ये पतरा पड़ा, घर बना लेते। तो बेचारा बल्ली बांट के अपने पतरे लगा के छोटा सा घर बना लेता था साइड पे, एक साइड पे। ये मेरी जर्नी 20 साल चली। जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था उधर वो ट्रेंड था, तो उससे हिसाब से जिस दिन मैंने कंपनी शुरू की ना, उस दिन पहले मैंने ये सोचा कि यार लेबर का कर अच्छा होना चाहिए। तो मैं खुद मेरे वर्कशॉप पे बैठा
मिनिमम कॉस्ट में एक घर, लॉकेबल घर कैसा होना चाहिए। आज जितनी भी लेबर कॉलोनी आप डेवलपर के आपकी साइट पे सब देखते हो ना, वो डिज़ाइन वो मेरी डिज़ाइन है। तो वो मैंने कैसे शुरू किया, फिर शीट लगाना, पतरा लगाना, एक बारी लगाना, फिर एक दरवाजा जिससे लॉक कर सके। तो मेरा पॉइंट क्या है कि लेबर शुड बी ट्रीटेड लाइक ए ह्यूमन बीइंग। वो चीज़ हम बहुत मिस कर जाते हैं। और हमारे लिए सीरियसली स्पीकिंग आज जो चैलेंज है ना, वो चैलेंज लेबर स्कैर्सिटी सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वी नेवर कंसिडर देम एज एन एसेट। हम हमेशा उनको लायबिलिटी गिना। अब ऐसा जमाना आ गया है कि नाउ दे आर एसेट फ्री। Is it? ऐसा टाइम है? Absolutely. Each and every contractor आज साकेत भाई पे 10 प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो उनके हर प्रोजेक्ट में डिले होगा। Because of the laborers. Availability of labor on time, seasonal labor और कंसिस्टेंसी ऑफ लेबर। आपको थ्रू आउट आपको एक लेबर आपके साथ जुड़ता कितने साल तक काम कर सकता है। मेरे पास ऐसे कुछ लेबर है कि जो मेरे टाइम पे पानी छाटते थे, उसका बेटा आज मेरे घर पे काम कर रहा है। मतलब मैं छोटा था, मैं 20 साल का था तब वो गोधरा से आया था, पानी छाटता था। तो उसका फादर तो पूरी जिंदगी मेरे वहाँ नौकरी किया ही किया है। आज उसका बेटा भी मेरे घर पे है। सो आई बिलीव इन दैट कि जब तक किसी का प्रॉब्लम नहीं होता तो उसको आप ट्रीट करते जाओ तो एक रिलेशनशिप बन जाता है। सो वेंडर लेबर इज लाइक हमारे लिए तो एक एसेट ही बन गई है और उनको सही तरह से रखना। और मैं कंस्ट्रक्शन में एक बहुत चीज़ नई उस टाइम से लेके ला के कर रहा था कि हर शुक्रवार उनको पैसा मिलना चाहिए। हर शुक्रवार को उनके खाते में पैसा जाना चाहिए। ओके। शनिवार को वो लोग शाम को परचेस करके उनके खाते में चला गए, रविवार को पूरी छुट्टी। आज 20 साल की जर्नी में मेरी कंपनी में हर संडे छुट्टी होती है, जो बाकी कंस्ट्रक्शन पे ऐसे नहीं होती है। शुक्रवार को करे, शनिवार को। हमारे पास फिक्स है कि भी शनिवार को पेमेंट करो, सोमवार को खर्ची, रविवार को खर्ची करके खाना पीना लेके आए, दोपहर के बाद घर पे रहे। एंड दिस इज द हिस्ट्री ऑफ 20 ईयर्स। मैं एक शुक्रवार आज मिस नहीं किया है कि मैंने पेमेंट नहीं की। नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि आपने ये चेंजेस किए। दे आर सो इम्पोर्टेंट। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि आज कितना भी इनोवेशन आएगा बट देयर विल बी ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल। और दूसरा क्या है कि अब लेबर का लड़का लेबर नहीं बन रहा है, मेसन का लड़का हाँ, मैं ये जानना चाहती थी कि तो स्कैर्सिटी ऑफ लेबर इज गोइंग टू ऐड ऑन। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज इन मल्टीपल 2x 3x चल रहा है। देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ले जाना है। तो देयर विल बी लॉट ऑफ वर्क टू कम। आज डेवलपर लेवल पे अपन 3 साल से सुन रहे कि इधर मंदी आ ही नहीं रही। मोर एंड मोर हाई राइज आर कमिंग। 100 मीटर का बिल्डिंग बना रहा है, कोई 70 मीटर का बिल्डिंग बना रहा है। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट डेवलपर लेवल, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट गवर्नमेंट लेवल। गवर्नमेंट के भी उतने ही प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एट कॉर्पोरेट लेवल। आज मैं अदानी ग्रुप के साथ, अदानी रत्न भाई नाउ 50% पार्टनर इन माई कंपनी। सो उनके वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड 13-14,000 करोड़ ऑफ प्रोजेक्ट। दो आई वाज हैविंग 6,000 करोड़ प्रोजेक्ट। उनका खुद का कैपेक्स इतना है कि टू मैनेज सच ए लार्ज कैपेक्स विल बी रिक्वायरिंग लॉट ऑफ लेबर, बट उसके साथ इनोवेशन मिक्स करते जाते हैं ताकि रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर घटती जाए। हाँ, मेरे 2 सवाल है। एक तो हमारे जो लेबरर्स हैं तो उनको ये काम नहीं करना है, सो आर दे लुकिंग टू डू बिगर वर्क विच गिव्स देम मोर रिस्पेक्ट एंड मनी? व्हाई एग्जैक्टली इज द शॉर्टेज? इसमें दो तीन चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ गई। पहले क्या था कि लेबर का सैलरी इतना अच्छा नहीं था। आज की तारीख में एक लेबर 450-500 रुपया कमाता है, तो 500 × 3 15,000 रुपीज़ पर मंथ वो कमा रहा है। 15,000 रुपीज़ के अंदर उसका खुद का रहना खाना उसको 5,000 में पड़ जाता है। उसकी लाइफस्टाइल में एक सिंगल फैमिली को रहने के लिए 5,000 में वो खाना पीना कर सकते। सो दे आर एबल टू सेव एटलीस्ट 50% और 60% आउट ऑफ देयर पॉकेट। तो उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी चेंज हुई। पहले यहाँ से गोधरा से आदमी इधर आता था तो जब छुट्टी होती थी या वैकेशन होता था तभी जाता था। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी इतनी इजी हो गई तो आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो सैटरडे संडे घर पे चला जाता है। सो अब वो एक एंगल से देखने जाओ तो लेबर्स है बट उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। अच्छा, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो 7 दिन काम करता है तो वो भी 5 दिन काम कर रहा है। और ये रीजन दोनों तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। इकोनॉमिकल ग्रोथ 3x जा रहा है, आपकी ओनरशिप एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स वर्क
50% हो गई, बिकॉज आपका लाइफ स्टाइल, अभी मोबाइल आ गए, तो मोबाइल है, हमारी साइड पे लेबर 50% टाइम कभी कभी मोबाइल पे बिजी होता है. सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैव एक्चुअली, दिस इज अ गुड एंड द बैड पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी. Yes. अपन इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम लेबर को ये बोले कि बस मोबाइल बाहर रख के आने का था, माई 50% लेबर विल नॉट कम. I was going to ask you, how has your work changed with the advent of technology? हाँ, बट टेक्नोलॉजी का उपयोग एक्चुअली हम एज ए कॉन्ट्रैक्टर में इट इज रियली ए बून टू मी. तो इजीएस्ट वे कि मैं अभी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढ रहा हूँ तो फटाक से बात हो गया, वो उसको मेरे को कुछ कम्युनिकेट करना है तो फटाक से काम हो गया. पहले क्या था कि ऑफिस पे जाओ, टेलीफोन उठाओ, फिर याद करो कि किस सप्लायर से बात करनी है. अभी नाउ एवरीथिंग इज ऑन योर फिंगर टिप. सबके पास फोन है अभी, सबके पास फोन है. सो हाँ. फॉर दैट द कम्युनिकेशन की, अगर कम्युनिकेशन स्पीड देखो तो बहुत बढ़ गई. सो उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिबिलिटी भी बढ़ी है, बट उसके साथ साथ ये भी न्यूसेंस है, पीपल आर नॉट यूटिलाइजिंग फुल टाइम टुवर्ड्स द वर्क. और जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पर आपके काम में आज भी ह्यूमन वर्क ज़्यादा है, राइट? टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ होता है एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में? आई एम श्योर क्रेन्स की क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब तो है ही, बेसिक आइडिया है हमें, पर आप बताइए. नहीं, बट एक्चुअली क्या हुआ कि देखो, मैं बहुत पुरानी बात आपको बताऊंगा कि पहले अपने यहाँ रेडी मिक्स, अपन मिक्सर मशीन में कंक्रीट बनाते थे. वो जो बड़े ऐसे गोल घूमते हैं वो, हाँ, साइड पे घूमते रहते थे ना, उसमें मिक्सर में जो मटेरियल डाला जाता था, मिक्सर होकर नीचे गिरता था, वो लेबर से हम लोग लिफ्ट करके जितने भी स्लैब बनने हैं उसको लेबर का पालक करके उससे काम कराते थे. In 2001, ready mix concrete came to India. I was the first person to install plant in. ये रेडी मिक्स कंक्रीट क्या है? आप जैसे वो ट्रांजिट मिक्सर में देखते हो ना, अभी गाड़ी में नहीं मटेरियल लेके चले जाते, कंक्रीट लेके जाते, जो गोल ट्रक्स होते हैं, उसको ट्रांजिट मिक्सर बोलते हैं. दैट इज मटेरियल इज मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस, उसके अंदर कंक्रीट डाला गया है, कंक्रीट सीधा साइड पे आ रहा है. पहले हम साइड पे सीमेंट लाते थे, ग्रिट लाते थे, कपची लाते थे और फिर उधर मिक्स करते थे. अच्छा. नाउ दिस इज रेडी मिक्स इज मिक्स्ड एट वन प्लेस एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ट्रांजिट मिक्सर एंड इट इज पोर्ड थ्रू पंप. तो टेक्नोलॉजी इतना आ गया कि उधर लेबर का रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 10% हो गया. पहले उसमें 90%, 100% लेबर था, तो वो 10% हो गया. इसी तरह से अगर पहले हम लोग रेनफोर्समेंट की बात करें तो उसका कटिंग भी क्या छीनी हथौड़ी से करते थे. अब उसके लिए भी मशीन आ गए कि फट कट. बेंडिंग मशीन्स, पहले हाथ से बेंड करते थे, उसके लिए भी मशीन आ गए. सो टेक्नोलॉजी हैज़ कम, बट हुआ क्या कि आज शायद थोड़ा आदमी आलसू भी बन गया. हमारे वहाँ तकलीफ कहाँ है कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो वी बिकम आइडल, मतलब हम लोग थोड़े आलसू बन जाते हैं. और एक्चुअली आउटपुट बढ़ना चाहिए था. मशीनरी आई बट आउटपुट नहीं बढ़ा. नहीं. तो हुआ क्या कि आउटपुट कुछ जगह पे बढ़ा, जैसे कंक्रीटिंग का स्केल है, बिकॉज इट इज पुल्ड थ्रू द पंप, तो वो बढ़ गया. बट जहाँ स्किल चाहिए थी और उसको खाली सपोर्ट सिस्टम में मशीन आया, तो उसकी आउटपुट का फायदा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा हुआ, तो उसका कमानी बढ़ गया. कंस्ट्रक्शन वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्री बताएंगे थोड़ा सा? कंस्ट्रक्शन वर्क, मेरा जो काम है उस काम को मेरे को एक मशीन में लाया, मशीन मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट को दिया कि उसको बोल के ये करेगा, थोड़ा फास्ट होगा. फास्ट करने के लिए लाया ना. हाँ. सो आज मैं 100 चीज करता था, उसकी जगह 120 करना चाहिए था ना. तो काम वही का वही, 100 का 100 रहा. वो 5 रुपया कमाने का शुरू हो गया क्योंकि उसकी लेबर इन्वॉल्वमेंट कम हो गई. वो आलसू बनते गए. बट जो रियल फैक्ट था कि भी मैकेनाइजेशन करने से आउटपुट भी बढ़ना चाहिए, कॉस्ट भी कमानी चाहिए, विच इज नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट रिडक्शन. अच्छा. और अपन क्या है कि कैपेक्स बढ़ाते जा रहे हैं. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हमने लास्टली एक प्रीकास्ट प्लांट डाला. इट इज वन ऑफ द फर्स्ट प्रीकास्ट प्लांट ऑफ गुजरात. तो क्या बिल्डिंग प्रीकास्ट प्लांट ऑफ गुजरात. सो वी विल बी मेकिंग बिल्डिंग एलिमेंट्स एट फैक्ट्री. मैं बीम उधर बनाऊंगा, कॉलम उधर बनाऊंगा, उधर से उठा के लाके इधर सीधा खड़ा, जैसे लेगो होता है ना, उसी तरह मैं बिल्डिंग खड़ा करूंगा. देयर द लेबर रिक्वायरमेंट एट साइट विल बी ऑलमोस्ट 0. तो वो सीधा मैकेनिकल वर्क है. सो सच टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी आर कमिंग एंड सच टाइप ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अभी एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ रहा है. क्योंकि अपने पास रास्ता नहीं है. इकोनॉमिकल ग्रोथ इतना फास्ट है कि कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कुछ नई चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो ग्रोथ का पेस
मार्केट का रिक्वायरमेंट अपन मैच कर पाए। और पहले एक बिल्डिंग बनाने में जितना टाइम लगता था वर्सेस आज लगता है, वो क्या डिफरेंस? एक्चुअली क्या था, पहले 12 मंजिले का बिल्डिंग हम लोग बनाते थे तो मिनिमम 2 साल तो कोई भी आदमी पकड़ के ही जाता। 12 मंजिले की बिल्डिंग? हाँ, कि 2 साल तो लगेगा। अभी हम लोग 36 मंजिले का बिल्डिंग, पहले एक ही बेसमेंट होता था, अब 4 बेसमेंट होते हैं, तो हम बोलते कि नहीं, बहुत 24 महीना ही टाइम रहेगा। अच्छा। एंड दैट इज द पेस। और उसमें 2 चीज हुआ कि इंटरेस्ट कॉस्ट इज अ बिग कॉस्ट टू द डेवलपर्स और एन इन्वेस्टर और एन इंडस्ट्री ऑफिसर। तो अपने ग्रोथ के पार्ट के अंदर, वो जर्नी के अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट का इम्पैक्ट भी सबके प्रॉफिट पे एंड सबके बुक्स पे बहुत आ रहा है। सो जितना फास्ट काम कर पाओ, दैट इज अ प्रॉफिट टू हिम, बिकॉज दैट इज, जितना इंटरेस्ट कॉस्ट बचा सके एंड जितना उसका पैसा जल्दी ला सके, दैट इज बिगर प्रॉफिट टू दैट। But sir, I'm little curious to know about this. जब अपने यहाँ earthquakes आते हैं तो ऐसे कौन से बिल्डिंग्स होते हैं जो अफेक्ट होते हैं वर्सेस कौन से बिल्डिंग जो नहीं होते? ऐसा क्या होता है उस कंस्ट्रक्शन में? What makes a building strong versus a weak? इस पहले क्या था कि अर्थक्वेक आने से पहले हम लोगों ने जो भी हमारी स्ट्रक्चर डिज़ाइन, जो हमारे IS कोड थे, उसके अंदर जो प्रोविज़न था, we do not have that 100% technical know-how how to make this building stable. 2001 के एक्सपीरियंस के बाद हमको सीरियसली मालूम पड़ा कि क्वालिटी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, डिज़ाइन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है विच कैन अफेक्ट द बिल्डिंग। पहले इस चीज़ को थोड़ा लाइटली लिया जाता था। कंस्ट्रक्शन सुपरविजन वॉज टेकन लाइटली, क्वालिटी ऑफ मटेरियल वॉज टेकन लाइटली। आज जैसे मैं रेडी मिक्स कंक्रीट बोलता और उस जमाने का कंक्रीट देखोगे तो अभी नीचे सड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि कंक्रीट क्वालिटी वाज नॉट गुड। अब 40 साल का बिल्डिंग देखोगे तो नीचे आपको रस्ट दका और सड़िया दिखता है। दैट इज बिकॉज द कंक्रीट में पोरस इतना होता है कि पानी अंदर चला जाता है, फिर उसके बाद वो रस्टिंग स्टील में शुरू हो जाता है। अभी का जो कंक्रीट आता है, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, द क्वालिटी ऑफ कंक्रीट, बिकॉज इट इज मैन्युफैक्चर्ड एट अ फैक्ट्री और रेडी मिक्स प्लांट, ट्रांसपोर्टेड टू ट्रांजिट मिक्सर, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतना कम है, कंप्यूटराइज वे में मिक्स होता है, तो इसकी वजह से क्वालिटी काफ़ी चेंज है। और वो क्वालिटी की वजह से आज अपन जो सोचते हैं, मतलब टेक्निकली जो कैलकुलेशन मैंने ग्रेड ऑफ कंक्रीट का किया, वही ग्रेड उधर बन रहा है। पहले वो टेक्निकल नोहाउ नहीं होने की वजह से सो कॉल्ड वी बिलीव दैट वो हो रहा है। नाउ ईच एंड एवरीथिंग इज बिन क्वालिटी का चेक होता है कि रेडीमिक्स कंक्रीट आता है तो इधर साइड पे क्यूब भरा जाता है, उसका भी एक टेस्ट होता है। आफ्टर कास्टिंग ऑल्सो, इफ यू वांट टू टेस्ट दैट बिल्डिंग इज सॉलिड, का एलिमेंट सॉलिड है कि नहीं है, दैट ऑल्सो देयर आर फ्यू टेस्ट यू कैन परफॉर्म एंड यू कैन डू इट। अर्थक्वेक के बाद फिर जो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स टू डिजाइन अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग। बहुत हाई राइज तो डैम्पर्स, जैसे अपन ये क्लॉक में जो क्या बोलते हैं, लोलक जो आता है, पेंडुलम, हाँ, उसी के हिसाब से देयर इज वन पेंडुलम विच कैन सपोर्ट द बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग ऐसे मूव होता है तो पेंडुलम इधर जाता है, बिल्डिंग इधर होता है। हाई राइज बहुत बिल्डिंग होती है तो उधर वो एक सिस्टम होता है। या तो फिर देयर इज ए बियरिंग्स आती है, फाउंडेशन के अंदर बियरिंग्स रखा जाता है, जिससे बिल्डिंग हिलता है तो इट मूव्स फ्रॉम दैट लोकेशन ऑन। बट स्टिल अपने यहाँ जो बिल्डिंग की हाइट है उसमें ये सारी टेक्नोलॉजी स्टिल टुडे इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट व्हेन यू गो बियॉन्ड 100 स्टोरी दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विल आल्सो कम इन। तो वो कहाँ पेंडुलम कहाँ होता है? इट्स इन द कोर ऑफ द बिल्डिंग, सेंटर का कोर होता है, वो लिटरली, एंड इट्स अ वेरी हैवी वेट मेटल बॉल, सो विच इज फिक्स टू द टॉप, एंड जैसे बिल्डिंग ऊपर से मूव होने की कोशिश करता है तो जो पेंडुलम मूव करके उसको वापस लाता है। सो दैट स्ट्रेसेस डू नॉट कम टू द फाउंडेशन। यस। और इंडिया में हम अभी क्या क्या आप ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं विच एक्ट्स लाइक यू नो एज अ सेफ्टी मेजर? सेफ्टी मेजर के अंदर तो मेरे हिसाब से कि द डिजाइन कैलकुलेशंस आर बिकॉज़ आई जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड से उसका जोनल डिवीजन हो गया, मतलब कि जोन 1 to 5 कहाँ का अर्थक्वेक इम्पैक्ट ज़्यादा है, उस उधर का जो, अच्छा, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है कि ये एरिया इस जोन में आता है तो आपको ऐसे करना चाहिए। तो मेरे स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर वो जोन 5 का है, तो आई हैव टू मेक श्योर दैट बिल्डिंग का स्ट्रेसेस एंड मोमेंट जो स्टील जो डाला जाता है उस कैलकुलेशन से डाला जाता है। सो ऑल दिस सच टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द कोडल प्रोविजन is now making very helpful to all the developers also to say that our building is safe. Yes. अभी जो
यंगर जनरेशन आ रही है इस काम में, आपको क्या लगता है उनको देखकर? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट देयर वर्क एथिक्स, देयर थॉट प्रोसेस, व्हाट डू यू सी दीज डेज? See, actually, in my days, I would say 85 to 2000 तक के बाद जर्नी और 2000 to 2025 की जर्नी है. उस टाइम पे क्या there is a big change in terms of mindset of the people. मेरा बेटा इतनी मेहनत नहीं करेगा जितना मैंने की है, because now he is having some platform and where he is working. But if he keeps on looking to my ethics, honesty and dedication towards work, so he is good at the platform मिल गया. Now you have to take it forward. बट आज फादर जो कर रहा है वो बेटे को नहीं करना है, उसे अलग करना है, क्योंकि फादर के 100 करोड़ ऑलरेडी पड़े, या 50 करोड़ पड़े. इफ आई टॉक अबाउट डेवलपर्स, दे गेट द डिफरेंट टेम्पटेशन. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग आई वुड ऑलवेज से टू यंग जनरेशन, फर्स्ट 5 years गिव हार्ड वर्क टू योर ओन सेल्फ. पैसे पे मत देखो, फर्स्ट यू फोकस कि व्हाट यू कैन डू. और जिसको भी फादर के पैसे पे नजर पड़ गई ना, वो हार्ड वर्क नहीं कर पाएगा. और एक दूसरी चीज में हर डेवलपर के साथ सेकंड जनरेशन में या मेरे जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सेकंड जनरेशन में होता है कि व्हाट यू आर गिविंग प्लेटफॉर्म टू योर सन और डॉटर, व्हाट हाउ दे आर गोइंग टू वर्क. तो वर्क एथिक्स उनको दो, हार्ड वर्किंग वो मोटिवेशन उसको दो, परसिवरेंस की धरपत चाहिए. हर आदमी को कल करोड़पति बन जाना है, नॉट पॉसिबल. हमेशा लाइफ में किसी को लॉटरी लगी है, सबको लॉटरी नहीं है. सो आदमी अपने आप को पहले ये तो समझ ले कि भी आई हैव टू डिलीवर माई सेल्फ टू द वर्क. मैं अपने आप को उसमें झोंकूंगा नहीं, तब तक तो ये नहीं होगा. और सक्सेसफुल पीपल कितने भी आप देख लो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हार्ड वर्किंग आया है. आज अपन सेकंड जनरेशन की बात करें या फर्स्ट जनरेशन की बात करें, करसन भाई ने उनका एम्पायर खड़ा किया तो आज उनके दोनों बेटों ने इसको मेहनत करके पकड़ के रखा, तब जाके 20 साल चला. सो जैसे आप अपने फोकस छोड़ते हो, हार्ड वर्किंग छोड़ते हो, या कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ भी छोड़ते हो, तब जाके दैट बिजनेस इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव टू द लेवल व्हाट योर फर्स्ट जनरेशन. सर आपके पास प्रॉब्ली कोई क्वेश्चन ही नहीं था, मतलब ये नहीं तो कुछ है ही नहीं. हाँ, पर ये आपके बेटे या काफी ऐसे जो बिजनेसमैन, सबके पास एक प्लेटफॉर्म है. मतलब वो प्लेटफॉर्म में आपको टेम्पटेशन क्या है, वो टेम्पटेशन है ना, सबको मार देती है टेम्पटेशन. या सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग, बट यू विल बी कॉल्ड एज अ सेल्फ मेड मैन. पर शायद आपके बेटे कितनी भी मेहनत कर ले, पर वो शायद सेल्फ मेड नहीं कहा जाएगा. सही बात है. बट ही कैन ऑल्सो बी नोन एज ए सेल्फ मेड पर्सन इफ ही इज एबल टू टेक दिस जर्नी टू डबल स्केल. मैं ये कर पाया, उसमें वो क्या ज्यादा कर पाया, व्हाट चेंज ही कैन पुट इट, हाउ मोर प्रोफेशनली ही कैन रन द बिजनेस. अगर बिजनेस फोकस है, मैंने जैसे उसने डाइवर्सिफिकेशन सोचा बिकॉज ऑफ द मनी, देन इज गॉन. सो यू थिंक, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको नहीं, बिकॉज ये प्रॉबेबली वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है या ट्रेडिशनल बिजनेस, उनको कुछ नया करना होता है, फैंसी करना होता है. इज इट अ गुड आइडिया और नॉट अ गुड आइडिया? नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इन द सेम फील्ड इज गुड. यस. जैसे मैं अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करता हूँ या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करता हूँ, जैसे मैं बिल्डिंग बना रहा, तो मैंने अभी प्रिकास्ट का बिल्डिंग फैक्ट्री डाला ताकि इट्स एन इनोवेशन टुवर्ड्स न्यू एरा ऑफ कंस्ट्रक्शन. सो मैं अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर इनोवेशन करते जाऊँ तो बराबर है. अगर मैं डेवलपर बन गया तो फिर मेरी जर्नी इज चेंजिंग. आपने नहीं सोचा कभी डेवलपर बनने? मेरे को बहुत लोगों ने बोला डेवलपर बनने. हाँ. तो मैंने सबको बोला कि मेरे को ईच डे चैलेंज चाहिए. डेवलपिंग बिजनेस में डेली कोई चैलेंज नहीं है पैसे के सिवा. आप समझो, तो डेवलपर इज इफ ही इज हैविंग ए फंड एंड ही इज एबल टू मेंटेन, तो उसको कॉन्ट्रैक्टर चाहिए. And contractor's life is little bit hard. Yeah. Each day we have a challenge. So हमको लाइफ में वो हार्ड वर्किंग के अंदर एक्सेप्टिंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम, अगेन गोइंग अहेड, हाउ टू मूव अहेड, उसी में हमारा ब्लड, क्या बोलते हैं, ब्लड में है. ब्लड में. और डेवलपर होगा, उसको दिमाग में ये होगा कि ये जमीन के अंदर इस तरह से बिल्डिंग बांधेंगे, व्हाट विल बी सेलिब्रिटी एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट. सो दोनों का फोकस अलग है. yeah. अब जैसे मेरे पास पैसा आया 100 करोड़, तो मैं 100 करोड़ लेके उधर चला गया,
माई एनर्जी ऑफ ग्रोथ एंड जब जो मेरा बिजनेस प्रोफाइल था उसको मैंने थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, इजी वे ऑफ अर्निंग मनी कर दिया। अच्छा, और वो फोकस हट जाएगा आपका इस काम को लेकर। ऑफ कोर्स वंस यू डाइवर्ट योरसेल्फ टुवर्ड्स मनी एंड प्रॉफिट, योर फोकस इज ऑलरेडी गॉन। मेरे हिसाब से पीपल, प्रोसेस एंड प्रॉफिट, ये तीन चीजें, पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रॉफिट। जिस दिन प्रॉफिट को ऊपर डाला, पीपल और प्रोडक्ट को नीचे डाला ना, उस दिन यू आर गॉन। प्रोडक्ट पे ध्यान दो, प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड पीपल। आप सीधी बात करो, मैं हमेशा पी का ट्राइंगल होता है, एक जगह पी प्रोडक्ट है, एक जगह पीपल है, एक जगह प्रॉफिट है। आप ये ट्राइंगल को उल्टा करो तो पीपल ऊपर चला जाता है, प्रोडक्ट नीचे आ जाता है, प्रोसेस। दिस इज द राइट वे टू डू। आदमी ह्यूमन रिसोर्सेज पर ध्यान दे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे ही आपने प्रॉफिट ऊपर डाला और पीपल को नीचे लाए तो प्रोडक्ट इंपैक्ट होगा। Would you call this as your philosophy of business? Of course, I never focus on money. I always focus on work, and work को ध्यान से करने के बाद जो बचा वो प्रॉफिट है। जैसे मैं प्रॉफिट से माइनस करके अपनी कॉस्ट बैठाने की कोशिश करता हूँ तो माई फोकस इज चेंज। सो प्रॉफिट फोकस में आप हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे। काम को फोकस करोगे, क्वालिटी पे ध्यान दोगे, प्रोडक्ट पे ध्यान दोगे, टाइम पे ध्यान दोगे, ऑटोमेटिकली दैट विल पैसा आ जाएगा। आपने टॉप 3 चैलेंजेस क्या फेस किया अपनी लाइफ में? बेसिकली एग्जैक्टली अभी तो मेरी 40 साल की जर्नी में आप मेरे को टॉप 3 चैलेंजेस बोलोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। बट हर साल देखो कि हर वर्क को देखो या हर प्रोजेक्ट को देखो तो मैं अपने आप में उसको एक चैलेंज ही समझता हूँ। आपको शायद नहीं मालूम है, हमारी कंपनी ने जब मेरे 15 करोड़ का, मेरे आपका जो गुलमोहर मॉल है, मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो 15 करोड़ का था, तब उसके पहले मैं 2 करोड़ का काम करता था। तो दैट 15 करोड़ मिला तो मेरे को लगा था मैं अभी 2 करोड़ का ही काम करूँ तो 15 का कैसे करूँ। 15 का करके मैंने ख़त्म किया तो मेरे को 125 करोड़ का गुजरात कैंसर सोसाइटी का हॉस्पिटल बनाना था, जाइडस बना रही थी, तो उन्होंने मेरे को दिया। वो ख़त्म किया तो मोदी साहब का स्वर्णिम संकुल 1-2 का जो ऑफिस था वो मेरे को चैलेंज मिला। वो ख़त्म करने के बाद देन आई गॉट 250 करोड़ जॉब ऑफ बिल्डिंग नारायणपुर हाउसिंग कॉलोनी। सो हर बार मेरा एक स्केल डबल या ट्रिपल पे गया। और जैसे मैं नारायणपुरा हाउसिंग कॉलोनी खत्म करने के बाद मेरे को दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग जो सूरत डायमंड बुर्ज बोला जाता है उसका प्रोजेक्ट मिला। तब तो लोग बाग ये सोच रहे थे कि दिस ही इज गोइंग टेकिंग ए बिग रिस्क। जिसने 250 करोड़ से बड़ा काम नहीं किया वो 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेगा। बट मैं मैथमेटिक्स और जैसे मैंने बोला मैं हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए फोकस रहता हूँ, डर बाजू में रखता हूँ। तो उस चीज़ मेरी मैथमेटिक्स काम में आ जाती है। मैंने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट किया तभी मेरे को 2000 करना, मल्टीप्लाई बाय 10 कैसे करें। लेबर 10 गुना करना है, मैनेजमेंट 10 गुना करना है, मशीनरी 10 गुना करनी है। टाइम ये 2 साल का था, वो 3 साल का था, तो ऑटोमेटिकली 1 साल तो बढ़ ही गया है। तो इस तरह से मैं हर प्रोजेक्ट को अपने आप में एक चैलेंज भी देखता था। और ह्यूमन रिसोर्सेज इज ऑलवेज गोइंग। मेरी जैसे मैं अपनी आज की जर्नी की बात करूँ तो पहले अच्छी क्वालिटी के मैनेजमेंट पीपल मिल जाते थे इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। आज इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर टू गेट गुड क्वालिटी पीपल इज अ चैलेंज। रिसोर्सेज मैंने आपसे बात कर रहा था कि लेबर इज ऑल्सो बिकमिंग ए बिग चैलेंज टूडे फॉर ऑल दी डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक मी। सो हर जगह पे जब जैसे जैसे हमारी जर्नी बढ़ती गई तो हमको कहीं ना कहीं चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट टाइप, मतलब कि जिस सिचुएशन में थे तो या तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह या साइज बढ़ने की वजह से या मैनेजमेंट स्किल बढ़ाने की वजह से। बट मैं ज़िंदगी में किसी चैलेंज को ऐसे फील नहीं कर पाता ये चैलेंज है। अगेन उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, उसमें घुसने की कोशिश करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ योर वर्क। यही हम यंगर जनरेशन सीखना चाहते हैं कि कैसे डर जाते हैं ना कभी कभी बड़ा चैलेंज आए तो कैसे ना डरे और कैसे उसको ले आउट ऑफ कंफर्ट जोन कैसे करे काम। जैसे मैं अभी बात आपको कर रहा था कि मैं जब स्कूल में था और स्कूल के अंदर जैसे प्रेयर बोली जाती उसके सामने मेरे को एक फ्रेज बोलने का था। तो उस जमाने में 7वीं कक्षा में मैंने एक फ्रेज बोला था, इट इज़ नॉट डूइंग द थिंग वी लाइक टू डू बट लाइकिंग द थिंग्स वी हैव टू डू दैट मेक्स योर लाइफ बेस्ट।
वाओ। तो उधर डर नहीं आता है। आप जैसे ही किसी चीज को अपना लेते हो, ये मेरा काम है, तो इतना सिंपल हो जाता है। और अगर इसको आप इस तरह से ये मेरा काम है, देन यू आर गॉन। सो वो जो इनर फियर है ना, टू एक्सेप्ट दैट वर्क, वही सबसे बड़ा चैलेंज आज की जनरेशन में है ही है। ये नहीं होगा, पहले क्यों सोचते ये नहीं होगा? लेट अस थिंक दैट इट विल बी डन, ट्राई फॉर इट, मे बी आउट ऑफ 100 यू विल गेट सक्सेस फॉर 90। बट जिस दिन आपने बोल दिया नहीं नहीं होगा, नेगेटिविटी इन द माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, तो हमेशा उसको आपको कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। नेगेटिव होने के बाद तो कोई रास्ता ही नहीं रहता। और ये इतना कहते हैं ना आजकल के, जो काम अच्छा लगे वो करो, फिर काम नहीं लगेगा। पर ये फिर शायद बहुत सही नहीं है आपका, क्योंकि ये फिलोसफी गलत है। हाँ। कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का हर काम आपके लिए अच्छा काम है। Then once you have selected, and if there is a developer, then he is selected, he is developing business, तो फिर वो रेरा का प्रॉब्लम है कि प्लान पासिंग का प्रॉब्लम है कि जमीन का प्रॉब्लम है कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बन रहा है तब कुछ आजू बाजू अदर एनवायरमेंट का प्रॉब्लम, इज ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। आपने फिर ये धंधा ही क्यों सिलेक्ट किया? सो एनीथिंग विच कम्स नाउ इज योर वर्क, इट इज नॉट ए प्रॉब्लम, इट इज योर वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। सेम में मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ तो मेरे को रोज का रोज कुछ ना कुछ चैलेंज आएगा कि भी आज लेबर टाइम पे नहीं आया, एक छोटा सा लेबर एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया तो डर थोड़ी जाएगा। उसका जो भी काम करना है कि उसका मलहम पट्टी करा के उसको जो भी घर पे पहुंचाना है, जो भी हर चीज को हम लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर पहले, मेरा हर चीज का एक इंश्योरेंस रहता है। तो हर चीज का एक इंश्योरेंस रहता है कि बिल्डिंग खड़ा भी एक बार गिर जाए ना तो मैं सो सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बिल्डिंग का इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे सकती है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ऑल रिस्क पॉलिसी। तो मैं पॉलिसीज एंड प्रोसेस में बहुत मानता हूँ, उसमें कॉस्ट कट नहीं करता। इंश्योरेंस चाहिए तो चाहिए, वो दिस पार्ट ऑफ योर कॉस्ट, प्रॉफिट भूल जाएगा। कभी कभी आदमी बोलते हैं इतने छोटे बिल्डिंग में क्यों इंश्योरेंस लेना, बचता क्या है? तो बोलता है 2 लाख रुपया। ये 2 लाख की लालच, कहीं शायद जाके प्रॉब्लम हो गया तो क्या करेंगे? सो ये टू अर्न मोर and to cut in the cost part, ये गलत चीज है। आप हर एक्सपेंस करने के बाद जो बचता है उसको प्रॉफिट मानते थे, तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ज्यादा कमाने के लालच में आप नींद भी बिगाड़ रहे हो। आप क्या देख रहे हैं आजकल यंगर जनरेशन जो बिजनेस करती है, व्हाट डू यू सी इन देम? क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? उनका में सबसे बड़ा चीज है ना, उनका कंपैरिजन गलत जगह पे। अच्छा। मेरा बेटा अगर गौतम वही है कि जायडस की कैडिला है कि निर्मा की करसन भाई, उनके बेटे से कंपेयर करे तो उसका गलत फील्ड है। you are meant to go there if you are working for towards that line. आप भी पहुंच सकते हो, प्रॉबेबली आज नहीं तो कल पहुंच सकते हो, बट आज वो फोकस गलत है। आज अपना फोकस जिस जगह पे उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 की बात चल रही है तो तू 2000 कर, तू 10,000 नहीं कर सकता। फिर दुखी हो जाते हैं। नहीं, दैट्स ए रॉन्ग टेम्पटेशन ओनली। और रॉन्ग टेम्पटेशन में फिर गलत डिसीजन लेते हो, अपने आप को थक जाते हो, फिर दूसरा बीमारी आएगा, और प्रॉब्लम आएंगे, बाहर निकल नहीं पाते। जस्ट थिंक अबाउट 20-25% ग्रोथ क्या पॉसिबल है? मैं इतना थोड़ा मेहनत बढ़ाऊंगा, थोड़ा पॉसिबल। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, जो परसिवरेंस बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। धरपत तो चाहिए। कल का कल करोड़पति बन जाओगे, वो तो नहीं पॉसिबल। सर, आपको लगता है कि आप जब अभी भी आप यंग है, पर और भी जब यंग थे तब सोशल मीडिया नहीं था, तो उसके कुछ एडवांटेजेस थे कि कुछ अपने काम पे फोकस रखने की ज़्यादा गुंजाइश थी, क्योंकि बाकी डिस्ट्रैक्शन ही नहीं थे। जब पता ही नहीं होता है कि दुनिया में लोग अलग अलग कर क्या रहे हैं, आज सोशल मीडिया के वजह से हर चीज़ दिखती है, एंड देन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ टू पीपल। वो बात भी आपकी सही है कि सोशल मीडिया में आपने कंपैरिजन देखा, बट मैं तो बोलता सोशल मीडिया इज ऑल्सो गुड थिंग इन लर्निंग ऑल्सो। आप मेरे को, आप इंग्लिश का एक वर्ड बोलोगे जो मेरे को नहीं समझ में आता, तो मैं तुरंत गूगल में डाल के समझ लेता हूँ, बट वो मेरा टेम्पटेशन टू लर्न है। सो सोशल मीडिया का उपयोग क्या करना है। मैं कभी कभी इंजीनियर को साइड पे बोलता हूँ कि इसका मतलब क्या, तो साहब नहीं मालूम है। तो मैं बोलता यार
डालना अभी गूगल में, मेरे को भी नहीं मालूम, अभी ढूंढ लेना। जो पहले नहीं हो सकता था। नहीं हो सकता। कुछ भी चीज था कि मैं जैसे बोला कि पहले पेजर आए, फिर मोबाइल आ गया, तो हम लोग साइट पे जब पेजर का मैसेज आता था तो फटाक से उसको फोन कर देते। वी फील लाइक लाइफ इतना इजी हो गया। किसी ने कोई मेरे को ढूंढ रहा था, उसका मैसेज आया तो मैंने उसको फोन कर दिया, क्योंकि आई वाज नॉट सिटिंग ऑन द टेबल विद द फोन। फिर तो मोबाइल आ गया, तो और लाइफ इजी हो गई। एनीबडी कैन कनेक्ट टू एनीबडी एनी मोमेंट, कुछ भी याद नहीं रखना अभी तो। मेरे को आपको मैसेज पास ऑन करना, मैंने आपको मैसेज दे दिया, बस डू इट दिस वे और दैट वे, तो मैं फ्री हो गया। पहले तो पूरा कच्चा चिट्ठा दिमाग में रखो, टेबल पे फोन पे जाओ और उसको फिर टिक करते जाओ, किसको किसको बात करनी है उसको, फिर वो भी मिला नहीं मिला वो भी डाउटफुल था। तो सोशल मीडिया आज के ज़माने में जितना भी टेक्नोलॉजी, अगर आप पॉजिटिव साइड उसका देखो तो इट इज़ रियली बूम। उसको अपन सही सी गलत अलग चीज है, बट सही भी 50% भी उपयोग कर लो। कैसे यूज करते हो वो आप पे है, पूरा आप पे निर्भर करता है। अच्छा मुझे करिए कि अगर आप अपना करियर वापस आज शुरू करेंगे, इफ यू गो बैक टू लाइक 40 years, तो आप वापस इतना कर पाएंगे, इतना एस्टैब्लिश है, इससे ज्यादा करेंगे, कम करेंगे, आपको क्या लगता है? मैं इस चीज को आपके साथ ये जोड़ूंगा कि शायद मैं उतना नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वो टेम्पटेशन चेंज हो जाता है। आप समझिए, सर्वाइवल टूवर्ड्स एग्जिस्टेंस। जब मैंने नौकरी शुरू किया तब 500 रुपये से शुरू किया, तब मेरा टेम्पटेशन 1000 का ही था। फिर जब मेरे को 1000 की जगह 3500 पगार हुआ तो मेरी बीवी भी खुश हो गई थी कि तेरे को इतना सारा पगार क्यों मिलता है। मैं मेहनत बहुत करता हूँ इसलिए बढ़ा मेरा पगार। फिर जब जाके मैं पार्टनर बना, फिर जाके मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली, बराबर है। तो ये सारी जर्नी, उस टाइम पे मेरा फोकस क्या था कि टू बी समथिंग। और अगर आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, उसके बाद अगर आपको काम नहीं मिल रहा है तो अभी वो फोकस मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरा बेटा ये फोकस कर सकता है, क्योंकि नाउ ही हैज ऑल द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आज ये बिजनेस जो चल रहा है उसको डबल करना, ट्रिपल करना, तो उसको टेम्पटेशन डबल ट्रिपल का हो सकता है। मेरे में वो टेम्पटेशन नहीं है, क्योंकि हमको तो उस टाइम पे हर बार एक नया माइलस्टोन वही दिखता था, विच वॉज 10-15% मोर। आज टारगेट्स आर डिफरेंट। आज मेरे को कंपनी 3 times करनी है, यस पॉसिबल है। HR को स्ट्रेंथन कर, इसको स्ट्रेंथन कर, टेक्नोलॉजी बढ़ा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा कंपनी में डालो, 100 करोड़ का डेट बढ़ाओ, पॉसिबल, बिकॉज अपन 100 करोड़ डेट बढ़ाएंगे तो उससे क्या मशीनरी ला सकते हैं। तो नाउ थिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट। अभी मैं अपने आप को जैसे एज की ऐसे बात की, क्योंकि एज हमेशा हर एक बंदे के अंदर, लाइफ के अंदर एज काम करती है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि 65 के बाद आई वुड जस्ट लाइक टू मेक माई पीपल टू वर्क एंड बी हैप्पी। ऐसा कोई काम मत करो घर पे स्ट्रेस लेके आओ। काम उतना ही करो कि शाम को घर पे जाके 7 बजे, 7:30, 8 बजे आप पहुंच जाओ। सुबह तक फोन की रिंग नहीं बजनी चाहिए। देन यू आर डन, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर ए वेल मैनेज पर्सन। ऐसा कुछ है जो आपको करना है और ये यहाँ पे मुझे ये चीज़ तो करनी है? अभी मैं एक बिल्डिंग बना के जा रहा हूँ, जो बिल्डिंग मैं 6 से 7 महीने में बनाना चाहता हूँ। 4-3 बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर एंड 18 स्टोरी बिल्डिंग है, 22 मजले, मेरे को 7 महीने में करना है। Was a challenge. It's a challenge, but I am doing just now, and probably by December, January, my dream come true. तो अहमदाबाद को ये बताना है कि 22 मरले का बिल्डिंग 7 महीने में हो सकता है। How do you define success? Internal satisfaction. Awesome. मैं बहुत खुश रहता हूँ हमेशा लाइफ में, किसी चीज की मेरे को कमी लगती ही नहीं है। पैसा कभी मेरे लिए बड़ा हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। Sir, I'd like to ask, any memorable project that you have in your mind you'd love to share with us? ये स्टोरी 2012-13 की है, when I was doing Swarnim Sankuul 1-2. Swarnim Sankuul 1-2 is also a good project for my company, because that was the turning project for us to explore ourselves to the government, explore ourselves to the department, all corporates, कि बॉस PSP क्या है। तब तक PSP को कोई नहीं जानता था। तो जब वो मैं प्रोजेक्ट कर रहा था
After earthquake, Modi Sahib was usually going to Bhuj for celebration of 15th August to कच्छ, मतलब वो भुज में ही जाते थे 2001 के बाद, अर्थक्वेक के बाद हिज रूटीन वाज टू 15th अगस्त ही ऑलवेज विजिट भुज। तो उन्होंने 24 जुलाई को एक मीटिंग बुलाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ऑल सेक्रेटरीज की कि बस व्हाट इज माय प्रोग्राम ऑन 15th of August व्हेन आई एम गोइंग टू भुज। सो उसमें गुजरात में सरकार के जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मिस्टर ISS राठौर थे, सारे चीफ इंजीनियर थे, एंड इट वाज अ प्रोजेक्ट ऑफ शहीद स्मारक। आप इंडिया गेट पे जाते हो, जो स्ट्रक्चर देखते हो, हाँ, उस टाइप का एक स्ट्रक्चर था, नीचे स्टैच्यू होता है सैनिक का, ऐसा एक शहीद स्मारक बना रहा। तो जब साहब ने पूछा कि व्हेन आई एम गोइंग टू भुज व्हाट इज माय शेड्यूल, तो उन्होंने बोला कि आप 2 इनॉग्रेशन करते हो, सुबह में फ्लैग होस्टिंग करते हो, then you move to Khavda. So Khavda is a border of India and Pakistan. Okay. So there is a border security force. So उस टाइम पे CM थे तो usually fly to Khavda. They have lunch with border security force people, and then he fly back to Gandhinagar. तो जैसे सेक्रेटरी ने बताया कि आप खावड़ा जा रहे हो, तो उनको तुरंत याद आया कि लास्ट टाइम आई वेंट आई प्रॉमिस देम टू मेक वन शहीद स्मारक, व्हाट हैपेंड टू दैट? एवरीबडी गेट शॉक्ड बिकॉज इट्स अबाउट 80 किलोमीटर भुज से होता है, एंड वो तो रण ही है, उधर कुछ खाना पीना कुछ मिलता ही नहीं है। उधर एक प्रोजेक्ट था जो 1.25 करोड़ की प्राइस कॉस्ट थी, एक छोटे कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था, और उसने जस्ट खाली कंपाउंड वॉल स्टार्ट किया। तो जैसे ही सर ने पूछा कि व्हाट हैपेंड टू दैट प्रोजेक्ट, एवरीबडी गेट शॉक। तो बोलता है कि ठीक है, साहब ने वो बताया कि सर अभी उधर ज़्यादा काम नहीं हुआ, बट मैं छोटा काम अभी शुरू हुआ है, मार्च में उसको ऑर्डर दिया है, एंड नेक्स्ट ईयर जनवरी में ख़त्म होगा। सो 9 महीने का टाइम है इसके बाद। तो मोदी साहब बोलते हैं ठीक है, फिर भी मैं उस जगह पे जाऊँगा। एंड दैट बिकम्स इनके लिए बहुत कि अभी क्या करें, हाँ, गिल्टी फील होने लगे कि अभी जा रहे तो ग्राउंड पे कुछ ऐसा देखने जैसा नहीं, साहब जा रहे। तो जैसे मैंने बोला, उस दिन मीटिंग बुलाई 23 जुलाई को, और LNT था, मैं था, सारे चीफ इंजीनियर थे, प्लान इधर साइड पे पड़ा हुआ था, एवरीबडी वाज डिस्कसिंग इसको 7 दिन में भरेंगे तो 21 दिन में आर्च बनेगा, उसके बाद क्योरिंग टाइम, उसके बाद चेंज के पत्थर लगाने थे, चारों बाजू डेवलप करके गार्डन बनाना था, एक पाथवे बनाना था 200 मीटर का। तो मैं तो शांति से बैठा था, तो मेरे को राठौड़ साहब बोलते, तेरे को इधर बैठने के लिए नहीं बुलाया है, तेरे को इसका जवाब देने के लिए बुलाया कि इसको क्या कर सकते हो। तो मैंने बोला करना क्या है? तो उन्होंने बोला कि जब साहब जाए तो एटलीस्ट इसको शेप में तो लाए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। मैंने थोड़ा सोचने के बाद मैंने उनको बोला, सर इसको खत्म कर दे। एवरीबडी गेट शॉक कि तू कैसे खत्म करेगा? तो आपको शेप में चाहिए, मैं प्रयत्न खत्म करने के लिए करूंगा तो शेप में तो होगा ही होगा, ज़्यादा पत्थर नहीं लगा होगा, या कुछ पत्थर इधर उधर पड़े होंगे, या पाथवे का थोड़ा RCC हुआ होगा, फ्लोरिंग नहीं लगा होगा, बट शेप में तो होगा ही होगा। तो राठौर साहब समझ गए कि आदमी बोलता है तो करता है, बिकॉज आई वाज डूइंग हिज प्रोजेक्ट। तो ही सेड द मीटिंग इज ओवर, लेट अस क्लोज इट। 24 का मीटिंग था, 24 शाम को मैं ऑफिस में आया, शाम को एक प्लानिंग किया कि हाउ वी विल एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। 100 आदमी, 2 कुक और 100 आदमी की कॉलोनी। 25 सुबह में मॉर्निंग में मैंने यहाँ से आदमी को चलाया। इट वॉज 550 किलोमीटर फ्रॉम हियर। आई मोबिलाइज देयर इन 24 आवर्स। 24 घंटे में मैं 2 कुक, उनका रसोई और 100 आदमी का कॉलोनी का सामान भेज दिया सुबह में। शाम तक उतना लेबर भेजा तक, शाम तक कॉलोनी बन गई, तैयार थी, और कुक भी रेडी हो गया था, और शाम को इधर से 100 आदमी उधर पहुँच गया, और 26 मॉर्निंग में मैंने पहला कंक्रीट शुरू किया। 19 दिन नहीं, 19 दिन नहीं, 24 को मीटिंग हुआ, 25 को 24 शाम को सोचा, 25 को मोबिलाइज हुआ, और 26 में कंक्रीटिंग शुरू किया। सो मतलब क्या हुआ कि विद इन 48 आवर्स आई वाज देयर टू स्टार्ट द वर्क। अभी बात क्या थी कि भी उधर प्रोजेक्ट का इज्जत लगा हुआ था, इसमें प्लानिंग एक ही चीज था, तो लेबर खाना कहाँ से खाने जाएगा? खाना जिसको भी भूख लगे खाना खा लेने का, जिसको भी भूख लगे सो जाने का, तो रात दिन काम चलेगा।
अच्छा, मैं इधर बैठ के इतना ही प्लानिंग कर रहा था क्या सामान उनको चाहिए, कब चाहिए, व्हाट्सअप था उस टाइम। तो सबने डे एंड नाइट काम किया पूरा। डे नाइट तो मैं व्हाट्सएप पे चेक करता था, फोटोग्राफ देखते जाता था, कितना हुआ क्या हुआ। यू विल नॉट बिलीव कि 26 सुबह से जो शुरू किया था, और सिंस मोदी साहब उधर जाने वाले थे, 12 अगस्त को मेरे को जगह खाली करनी थी। सो ये 16 दिन के अंदर मैंने 12 अगस्त को इवन द स्टैच्यू ऑफ सोल्जर, इवन द इनॉग्रेशन प्लेक ऑफ मोदी साहब, इवन द लोन जो कारपेट लोन आती है वो लगा दी थी, एंड द प्रोजेक्ट वाज 100% कंप्लीट फॉर इनॉग्रेशन। वाह, तो टोटली एन अचीवमेंट। आपको खुद को ही कितना अच्छा लग रहा होगा। मेरे को उस टाइम पे ये लग रहा था कि मैंने किया वो मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, very nice. मैंने किया वो मेरे को समझ में नहीं आता, बट फोकस क्या था, करना है। अब क्या ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, तो इसको डबल कर, कैसे करना है। अभी आदमी कम पड़ रहा है तो उसको और डबल कर। सो हर चीज के पीछे एक घंटे का कैलकुलेट करते करते जो प्रोजेक्ट सरकार ने 9 महीना दिया था वो हमने 19 दिन में खत्म। That became a great story. Yeah, और आज की फिर हम हमारी टीम में भी हम जब भी कोई डिस्कशन करते हैं ना, तो पहले से ये मोटिवेशन तो होता है कि नहीं पॉसिबल, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सामने शुरू किया है तो कुछ न कुछ इसका अंत सही होगा। सो मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, प्लानिंग, एंड जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, डर नहीं है, एक ही फोकस चीज है कि करना है, तो कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम आती है, चैलेंज आती है, तो उसको सॉल्व किया, फिर भी लगे रहते हैं। जैसे ही डर आ गया ना कि शायद नहीं होगा, तो मेरी वीकनेस शुरू हो जाती। तो अगर आपका फोकस क्लियर है ना, आपका थॉट प्रोसेस में गोल क्लियर है, तो मेरे हिसाब से चैलेंज फिर चैलेंज नहीं लगता, वो पैशन बन जाता है। एंड देन विद पीपल वर्क्स विद पैशन, तो ऑटोमेटिकली दैट कम्स टू ए रिजल्ट। एग्जीक्यूशन, बेसिकली लोग जो एग्जीक्यूशन पूरी तरह से नहीं कर पाते, वो डर के मारे या सोच के मारे हट जाते हैं। और यही आप कहना चाहते हो, जस्ट एग्जीक्यूट द प्लान। ओके, लास्ट क्वेश्चन, लव टू नो, आपका हेल्थ सीक्रेट क्या है? हेल्थ सीक्रेट आई डोंट नो। यू लुक सो फिट। पहले जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं सैनिक स्कूल में पढ़ के आया था, तो काफ़ी डिसिप्लिन और लाइफस्टाइल उधर से ही मेरी डिफाइन थी। तो 5 to 12, फिर भी आई कम फ्रॉम ए फार्मर्स फैमिली, सो फूड हैबिट्स भी थोड़ी मेरी, बाहर का फूड खाना बहुत जरूरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चने खा लेता हूँ, गाड़ी में चने रखता हूँ कि भूख लगी तो चने खा लेने का, पानी पी लो, बात हो जाती है। रूटीन ऑल्सो इन द मॉर्निंग, मेरे लगभग 25 साल का था, 60 साल के ऊपर हो गया, तो 35 साल से टर्मरिक विथ मिल्क विथ टर्मरिक एंड 1 एप्पल ए डे, तो पता नहीं क्यों शुरू किया था, और आपने रोज खाया है ये? रोज खाया है। एंड समटाइम्स ये फील भी होता है कि आई थिंक समथिंग इज देयर इन दैट फूड विच इज हेल्पिंग मी थ्रू आउट द डे टू कीप मी एनर्जेटिक। द कोड जो इतने सालों से है, एन एप्पल अ डे, एंड सो यू आर अ लाइव एग्जांपल। Maybe like awesome. So we'd love to do a quick rapid fire with you. One quality every great contractor should have. I think honesty. Yeah. Ahmedabad's most iconic project, according to you? I think Palladium Mall is one of that. Okay. I think second is ITC Hotel is one of the second. And आपने किया इसमें से? No, Palladium Mall I have done. You've done. But hotel was not done by me. Okay. Cement, steel और manpower? Of course manpower. हाँ, आजकल तो और भी हमने cement steel is easily available if you have money, and availability is always there, but the labor is a big challenge to maintain and to get the labor. One upcoming Indian city with great infrastructure potential? I think Ahmedabad. हाँ? Yeah. आप क्या चाहते हैं कि कोई अगर आपको डिस्क्राइब करे, तो one word में कैसे आपको डिस्क्राइब करना चाहिए उन्हें? One should be a good human being. Most underrated construction innovation today? Underrated construction innovation today? I think precast, because precast is not accepted universally as of today, but I think that's the next demand of the market, and because of the problems which we are facing in terms of
getting the projects Yes. delayed because of availability of labor, good quality manpower. I think some more innovation related to precast technology or modular technology which we can adopt to make construction fast and in good quality. PSP in 3 words. Passion, speed and people. Nice. अगर आप कंस्ट्रक्शन में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? I passed UPSC. I could have been in the military. Ah, I was failed in the physical interview at Allahabad. Otherwise, I passed UPSC. So I could have been a major or a colonel or a retired colonel today. But maybe the destiny was that I was got failed in the physical interview. ah, And today I'm here. wow. Patel sir, I'd really like to say thank you for your time. हमको इतना अच्छा लगा आपसे बात करके. इस इंटरव्यू के पहले हम में से कोई भी आपको इतने अच्छे से जानता नहीं था, बट आपसे बातें करके हम सबको ऐसा लग रहा था कि और हम सुनते जाएं. आपके इतने सारे लाइफ लेसन्स है हमारे लिए सीखने के लिए, एंड all of us here are thoroughly impressed by you and your thought process and the way that you've led your life. Thank you very much, and thanks for this platform also, because sometimes what we feel that more and more I give advice or motivation to young generation, even if that helps to few of them, that can create a good quality people, good quality construction, good quality human being. And this inspirational story, what I hear from someone or what I give to someone, I think it is a journey where we have to give something to the society. मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं कभी भी एक यंग लड़के को जब भी मिलता हूँ ना, तो मैं पहले उसको पूछता हूँ कि क्या कर रहा है, क्या करेगा. तो ये चीज अपने को देनी चाहिए. See, sometimes people are not that much outspoken to give advice to everyone. मैं पता नहीं वो सही है गलत है, I don't know, but I always give advice. And that's how it works. And sometimes people are getting inspired. I also know so many people in my life. They always come and tell me, sir, उस टाइम पे आप मिले थे, ये बात हुआ था, मैं आज ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. And we feel proud that yes, our story can be replicated to some people, or some of the things of my life, it can help to other people. That's how we should think. Absolutely, absolutely. We really wish you all the happiness and all the good health, और आप ऐसे ही हमेशा रॉकस्टार की तरह काम करते रहिए. Thank you, sir. Thank you. Thank you.